Namaste everybody, welcome back to my YouTube channel that is the BS Law Entrance Exam by your coach Bakul Anspal. This is Bakul Anspal, the founder and the CEO of this very edtech startup, and in this video we are going to talk about what is the difference between passing off and trademark infringement. So a few days back I was reading this particular topic, so this somehow popped up on my feed and I was so much interested because you know what, trademark infringement, at least you must have studied or you must have heard the word infringement, but I am damn sure that if you're somebody who's a first year law student, or at least who's somebody who's not so much curious about intellectual property, or maybe somebody who's not into corporate or intellectual property, etc., then you must have not heard the word passing off. Passing off does not even sound like a legal jargon, but actually it is. So we're going to read about this particular thing. If you're somebody who's in the second year of law school, or maybe if you are reading intellectual property, or if you want to, or if you're looking forward to doing an internship in an intellectual property firm, then again there would be concepts that would come up again and again every day while drafting, or maybe while researching, or while dealing with your clients, etc. Or if you're just somebody who was just going to kickstart their law school, or maybe somebody who was just curious about legal topics, or maybe who's going to pursue 3 LLB post their graduation, so ये video is again for you, because again you would also be surprised, and we have also made this PPT keeping in mind the case laws as well. So you can see the first case law, at least on this first slide, which is the in front of you right now. And also there would be a couple of case laws that we'll read. Along with case laws, we'll read the Bear Act as well, we'll read the sections as well. So अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सो आई एम अटैचिंग दिस वीडियो ऑन द आई बटन, जहाँ पे मैंने पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, फ्रॉम कॉपीराइट, फ्रॉम ट्रेडमार्क, फ्रॉम XYZ, फ्रॉम ट्रेड सीक्रेट एटसेट्रा, पेटेंट एटसेट्रा, जिसके क्या प्रोसीजर है, क्या डेडलाइन है, कौन वाइपो क्या है, कौन सी ट्रीटीज है, कौन से कन्वेंशंस हैं, वो सब हमने उसमें एक्सप्लेन और डिस्कस करके ऑलरेडी रखा हुआ है. उसको आप जाके देख लीजिएगा वीडियो को, आपको पता चल जाएगा. और इवन इफ यू आर समबडी हु डज नॉट इवन नो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब मालूम हो जाएगा, एंड देन इस वीडियो पर आ जाइएगा. ठीक है, तो ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज अबाउट व्हाट इज पासिंग ऑफ एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. सो ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, इट इज देयर इन द वीडियो दो, बट आई एक्सप्लेन दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल. तो जो डिस्टिंक्शन है ना पासिंग ऑफ का और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, बट अगेन दोनों में बहुत फर्क है देखोगे तो. सो दिस पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन, it was brought out by the Supreme Court in this particular case, that is Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma versus Navratna Pharmaceutical Laboratories. And you need to remember this particular case if you are somebody who is studying this or is watching this particular video solely for exams, या फिर you are somebody जिसको बहुत ज़्यादा curiosity है again बहुत detail and depth में जाने की, but I have kept this video not too basic and not also in depth, because I want everybody to understand. Okay, so this is this particular case, and we'll read about it further. Okay. So what is passing off and trademark infringement? So trademark infringement basically protects registered trademarks, and passing off protects the business goodwill and reputation even without registration. So basically trademark infringement, so those marks which are so unique, जो public या फिर consumer या फिर हाँ पब्लिक की आंखों में या दिमाग में एक कैरेक्टर या पर्सनालिटी ऑलरेडी जनरेट कर देते हैं. ओके, सो लेट्स सपोज इफ आई से हल्दीराम्स, सो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो एक ओवल शेप का लोगो आ जाएगा, जिसकी आउटलाइन वाइट है, जो रेड कलर का है, जिसपे वाइट कलर से हल्दीराम्स लिखा हुआ है, और मे बी बीकानेर वाला, तो यू विल गेट वो येलो कलर का लोगो है ना, उस पर रेड कलर का थोड़े थोड़े मार्क्स हैं है ना, उस पर बीकानेर वाला लिखा हुआ है. फिर और मे बी नाइकी तो आपको टिक दिख जाएगा, मे बी प्यूमा तो आपको वो एनिमल की वो दिख जाएगा लोगो. सो आपको व्हाट आर दीज आर ट्रेडमार्क्स, बिकॉज ये एक यूनिक डिजाइन, एक यूनिक आइडेंटिटी, एक ऑलरेडी एक इमेज मार्केट में उनकी क्रिएट कर देते हैं. सो दिस इज ट्रेडमार्क. एंड अगर वही सेम टू सेम वो चीज कोई बंदा और यूज करे, तो इन दैट केस समहाउ वो उसके मॉरल राइट को छीन रहा है या फिर वायलेट कर रहा है. एंड वील रीड अबाउट द मॉरल राइट्स एंड द इकोनॉमिक राइट्स ऑल्सो. सो किसी भी
ऑथर के पास या फिर कोई भी बंदा जिसने प्रोड्यूस करा होता है कोई भी पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मार्क, चाहे वो कॉपीराइट हो, पेटेंट होता है, उसके दो होते हैं, या तो उसके इकोनॉमिक राइट्स होते हैं या फिर मॉरल राइट्स होते हैं उस पर। उसके इकोनॉमिक राइट्स के उसको यूज कर सकता है, वो उससे वो पैसे ले सकता है। इट फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। इफ योर म्यूजिक इज बीइंग यूज्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, then in that case you are going to get money out of it. This is what royalty, this is your economic right. Moral right में कि कोई और, because you have the propriety rights. Propriety rights means the property rights, meaning वो rights आपके हैं उस पर, वो property, intellectual property को ही property consider करा जाता है और आप उसकी propriety holder मतलब property holder माने जाते हो। So कोई और आपसे वो बिना पूछे उसको यूज नहीं कर सकता, उसको दोबारा से पब्लिश नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, या फिर उसको अपनी कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकता। ऑलवेज देयर आर एक्सेप्शंस, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा है। एजुकेशनल कंटेंट, अगर मैं किसी, अगर फॉर एग्जांपल आई एम पिकिंग अप समथिंग एंड लेट्स सपोज मैं कोई ओके मैं कोई यूट्यूब चैनल पर मैंने कोई बुक खोली है, मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही नहीं ले रही, ठीक है, मैंने कोई एक्सवाइजी बुक खोली किसी प्राइवेट पब्लिशर की एंड मैं वहां से उसको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अगेन मेरे ऊपर इस पर कोई केस फाइल नहीं कर सकता कि मैंने उसका मॉरल राइट वायलेट करा है या फिर उसका प्रोप्राइटी राइट वायलेट करा है। क्यों? क्योंकि मैं उसको एजुकेशनल कंटेंट के लिए यूज कर रही हूँ, वो एक एक्सेप्शन कंसिडर करा जाएगा, राइट। सो इसलिए ये होता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ में, ये हमने बेसिक एटलीस्ट चीज समझ ली। अब क्या होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो अभी हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रेडमार्क के नंबर्स होते हैं, कोड्स होते हैं, आपका कौन सा मटेरियल कौन से विद इन रेंज में लाई करता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कौन से रेंज में लाई करेगा, अपैरल है कौन सी रेंज में लाई करेगा, वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। बट अगर मान लीजिए ओके एग्जाम्पल मैंने आपको ले लिया नाइकी का जो टिक है, तो उस टिक को मेरे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब रजिस्टर क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि फर्दर अगर आगे चलकर कोई डिस्प्यूट आता है तो फिर एटलीस्ट उसमें दिक्कत नहीं आएगी डिस्प्यूट को सॉर्ट होने में, क्योंकि अगर आप उसको रजिस्टर करा लेते हो बिकॉज देन इट वुड बी कंसिडर्ड इन योर नेम एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इफ एनी डिस्प्यूट कम्स अप देन देयर वुड बी नो कंफ्यूजन regarding who is the propriety holder of that particular IP, ठीक है, बिकॉज यू वुड हैव द प्राइमा फेसाई प्रूफ, ठीक है। सो अब पासिंग ऑफ में क्या होता है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, जब कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कोई और यूज करता है, उसका इन्फ्रिंजमेंट करता है, दैट इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। अगर नाइकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है, अगर मैं सेम कंपनी खोल लेती हूँ शूज वाली जिस पर मैं टिक लगा देती हूँ, या फिर अगर मान लो कोई मिलता जुलता टिक लगा देती हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक बड़ा टिक एक छोटा टिक नीचे लगाती हूँ जो समहाउ सिमिलर लग रहा है, सेम नहीं बट अगेन सिमिलर लग रहा है, हम उसके डेफिनेशन भी पढ़ेंगे नाइकी से, तो ये हो जाएगा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। लेट्स सपोज वो मार्क रजिस्टर्ड नहीं है और उसका इन्फ्रिंजमेंट करती हूँ, उसको मैं यूज करती हूँ, और लेट्स सपोज नाइकी इज नॉट रजिस्टर्ड और मैंने एक शॉप खोली सामने ही कि वो जूते बेचती हूँ और वहां पर जो टिक है उस टिक के अंदर नीचे और छोटा सा और टिक लगा देती हूँ, देखिए सेम कि ठीक है दिस इज माय ब्रांड। अब Nike is not registered. Since Nike is not registered, okay, your argument would be since it is not registered, and even if I try to infringe or violate its propriety, right, or the property rights, IP rights, so in that case, I should not be sued, right? But I would be sued in this case because this is not a trademark infringement now. This is passing off. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Trademark infringement is only for registered trademarks. Passing off is only for अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स ऐसे नहीं होता कोई भी ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड आ गया, कल किसी ने कोई शॉप खोल ली जहां पर उसने अपने ब्रांड पर लेट्स सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक पेंसिल का एग्जांपल ले लेते हैं, नटराज पेंसिल्स, you have red color and you have black colored stripes on it, right, all over the pencil. So अगर कल मैंने जाकर ये सेम शॉप खोल ली, ठीक है, कल नटराज एक न्यू कंपनी आई थी, ठीक है, और 2-3 दिन उसने शॉप चलाई और मैंने भी अपनी शॉप खोली जहाँ पर मैं भी पेंसिल्स बेचती हूँ और वो भी कलर सेम है। कलर ये है कि उसमें रेड और ब्लैक की जगह मैंने मेहरून और ब्लैक करना चालू कर दिया, और जैसे नटराज गोल्डन से लिखा होता है मैंने भी अपनी कंपनी का नाम गोल्डन से लिख दिया, ठीक है। तो अब इसमें सीन क्या होगा, अब ये नहीं होगा, अब इसको आप पासिंग ऑफ नहीं बोलोगे बिकॉज पासिंग ऑफ में भी पैरामीटर्स हैं। अगर आपके पास अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड नहीं है, एटलीस्ट ट्रैक करने के लिए कि कौन इसका प्रोप्राइटी होल्डर है, तो आपके पास कोई और फैक्टर होना चाहिए, और वो फैक्टर होगा गुडविल और रेप्यूटेशन। गुडविल और रेप्यूटेशन इंटैंजिबल होता है। I hope you know the difference between tangible and intangible. If you do not know the difference, then check out that particular video. IP के केस में tangible and intangible क्या होता है, but it means tangible is something that you can touch, intangible is something that you can not touch.
ओके, दिस नाइकी का ट्रेडमार्क या फिर नटराज की पेंसिल का डिजाइन, आई कैन टच विद माई हैंड्स, दिस इज टैंजिबल. बट द रेपुटेशन दैट नाइकी हैज established over the years, or the reputation that Natraj pencil has got over the years, this is over the years. This I cannot touch. Reputation I cannot touch, obviously, right? That can only be felt. This is intangible. So this is something which is intangible, goodwill and reputation that you earn over the years, and this is how your passing off is determined, which is not on the basis of the registration of trademark, obviously, because it is unregistered, but is on the basis of goodwill and reputation, and we'll see it with the help of case laws. ओके, ट्रेडमार्क में क्या क्या आ जाता है? वर्ड्स आ जाते हैं, लोगोस आ जाता है, सिंबल्स आ जाते हैं, डिजाइन आ जाते हैं, ब्रांड नेम्स आ जाते हैं. ओके, ब्रांड नेम्स लाइक नाइकी और एप्पल और एनी अदर काइंड ऑफ ब्रांड, जिसका जैसे वो ब्रांड आप सुनते हो उसका लोगो आपके दिमाग में आता है, बिकॉज अगेन उसने एक आइडेंटिटी, अपनी यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर दी है पब्लिक के माइंड में. ठीक है, और वो बहुत इजीली डिसीवेबल है कि अगर मान लो आज मैं नाइकी का कोई प्रोडक्ट यूज करती हूँ और कल नाइकी से मिलता जुलता एक और शॉप खुल जाती है जो समहाउ सेम लोगो यूज करता है. सो इन दैट केस कंज्यूमर सोचने लगा एक पॉइंट पर, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा, ये वाला नाइकी है, ये वाला नाइकी, ये भी तो अच्छा लग रहा है ना, तो ये यूज कर लेते हैं, ये सस्ता भी है नाइकी से, एक्सेट्रा. ऐसी चीजें होने लगी, नाइकी को हो जाएगा लॉस और उसका आईपी राइट वायलेट हो जाएगा. ओके, trademark infringement occurs when a registered trademark is used by another person without authorization. You need to give authorization for it. Okay, then only it can be used, leading to confusion among the consumers. If there is no authorization, then obviously you cannot use it. Legal basis, it is governed by Trademark Act of 1999, particularly Section 29, exclusive rights of the registered trademark owner. This is the particular section from the Bear Act. Let's see it. A registered trademark is infringed by a person who, not being a registered proprietor, means वो owner ही नहीं है, or a person using by way of permitted use, uses in the course of trade, right? So either मैं registered person, या फिर ये बात होती है बंदे के पास अथॉरिटी है, अब अथॉरिटी भी नहीं है. uses in the course of trade a mark which is identical, deceptively similar to the trademark in relation to the goods and services offered. Deceptively similar or identical in relation to goods and services offered. Take off a trademark which is registered and in a manner to render the use of it likely to be a trademark. So trademark आपने explain कर दिया, which is about आपका deceptively similar and identical की case में. A registered trademark infringed by a person who, not being a registered proprietor or a person using by way of permitted use, uses in the course of which a mark which is because an identity with the registered trademark with the similarity of goods and services, similarity of to the registered trademark with the identity or similarity of the goods covered by such trademark, or identity with the registered trademark with the identity of the goods and services covered. So trademark की भी और से मिलते जुलते goods and services की भी, उसके बारे में बात है, identity and similarity. Likely to cause confusion on the part of the public, which is likely to have an association with the registered trademark. Confusion. ठीक है? Okay, in the case falling under C and of subsection 2, the court shall presume it is likely to cause confusion on the part of the public. Registered trademark is infringed by a person who, not being the registered proprietor or a person using by way of permitted use, authority wali baat aa gayi, uses in the course mark which is identical with a similar, which is in relation to goods and services, registered mark which has reputation in India, or the use of mark without due course takes unfair advantage or is detrimental to the distinctive character or repute of the registered trademark. Okay, is infringed by a person if he uses such trademark as his trademark or name of the trademark, name of the business concern, part of the name. The trademark is registered if particular, if fixed होता है goods packages पर, या फिर ऑफर करा जाता है, एक्सपोज करते goods for sale, मार्केट में होता है, स्टॉक्स में होता है, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं उस गुड्स को, बिजनेस पेपर्स में एडवर्टाइजिंग के लिए आप फिर उसको यूज करते हैं, कई यूज हो रहा है बाहर पब्लिक को दिखाने के लिए, सब आप जो चीजें देख रहे हो. ओके, फॉर लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सब एक्सप्लेन हो गया ऊपर. ठीक है, इन्फ्रिंज बाय वे ऑफ एडवर्टाइजिंग. ओके, अनफेयर एडवांटेज है या फिर डेट्रीमेंटल है कैरेक्टर से या फिर रेप्यूटेशन के अगेंस्ट है. तो इन सब चीजों में देखोगे डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंसिस्ट ऑफ, इंक्लूड वर्ड्स हो सकता है, ट्रेडमार्क में भी इन्फ्रिंज बाय स्पोकन यूज ऑफ दोज वर्ड्स एज वेल एज विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल भी है एंड स्पोकन वर्ड्स भी, आप कुछ ऐसा बोल दो या फिर आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दो जो लिख रहा हो सेम, एंड इन रेफरेंस, and the reference in the section to the use of mark shall be construed accordingly. तो ये सब आपका था which is about trademark infringement. जो भी हमने पढ़ा, जो सिंपल चीज में पढ़ा था, वही सेम इधर भी अप्लाई हो रही है. एग्जाम्पल क्या है? अगेन सपोज अ कंपनी रजिस्टर्स ट्रेडमार्क नाइकी फॉर शूज. This is the symbol, again logo. In other companies start selling shoes using the same mark or confusingly similar mark like Nike.
इट मे अमाउंट टू ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. ठीक है, कंज्यूमर्स में बिलीव दैट द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू द ओरिजिनल ब्रांड, और कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, ग्रेट. Okay. Key features of trademark infringement. So in that you have statutory law. It is regulated by statutory law, and this is the Trademark Act 1999. It must be registered. Focus on similarity of marks. ये हमने देख लिया. And unauthorized use of the plaintiff of the registered mark. उसको प्रूव करना पड़ता है कि अनऑथराइज यूज था ट्रेडमार्क का, और ये इजियर टू प्रूव है. क्यों है? क्योंकि ये रजिस्टर्ड होता है. अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होता तो इजियर टू प्रूव नहीं होता. कॉन्ट्रैक्ट्स देख लो, कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न होते हैं तो उन पर डिस्प्यूट आता है तो ठीक से सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि क्लैरिटी रहती है. आप कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें दिक्कत आती है बहुत. ठीक है. What is passing off? Passing off is a common law remedy used to protect the goodwill reputation. Common law मतलब ये कोई statutory law नहीं, ये कहीं mentioned नहीं है. ठीक है, it's just by common law principles. Goodwill and reputation, goodwill over a period of time, reputation. ठीक है, goodwill again, the kind of value that people have in your products, or the kind of association that people feel with your products, or the faith that people have with your products, that reputation, that is known as goodwill. It occurs when a person misrepresents the goods and services as those of another person. Unlike trademark, registration is not required. Unregistered products के लिए होता है. Example, original business है कोई sweet treat नाम का. ठीक है, has been operating for many years and built a strong reputation. मतलब goodwill establish हो गई. देखो आप operative words पर focus करो. That is many years and reputation build कर दी है. Another company same नाम पर similar packaging में अब चलाना चालू कर देता है, बेकरी खोल देता है. कस्टमर्स वो सोचते थे बहुत बेकरी से रिलेटेड है, और ये हो जाएगा पासिंग ऑफ, क्योंकि कस्टमर्स को मिसलीड कर सकता है और डैमेज कॉज हो सकता है उसकी गुडविल का. अब एक क्लासिक ट्रिनिटी टेस्ट है पासिंग ऑफ में जो यूज होता है. एक ही चीज आपको प्रूव करनी पड़ती है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में, वो है कि उसने अनऑथराइज यूज करा है मेरे आईपी का. बट इसमें आपको तीन चीजें इंडिपेंडेंटली प्रूव करनी पड़ती हैं. ऐसा नहीं कि दो प्रूफ कर दी तो हो गया, तीनों प्रूव करनी पड़ी. और टेस्ट था वैंडर लिमिटेड वर्सेस एंटॉक्स इंडिया पी लिमिटेड के केस में स्टैब्लिश हुआ था, और इसकी भी इंस्पिरेशन एक यूके के केस से ली गई थी. गुडविल, प्लेंटिफ मस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन इन द मार्केट. गुडविल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो माना इंटेंजिबल है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंस रखता है, विच वाज सेड इन द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बीसी श्रीनिवासा सेट्टी केस. गुडविल थी पहली बात तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में. फिर डिफेंडेंट ने, उस बंदे ने मिस रिप्रेजेंट करा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और इसकी वजह से डैमेज हुआ है प्लेंटिफ को या फिर ओरिजिनल बिजनेस को. ये तीनों चीजें आपको इंडिपेंडेंटली दिखानी पड़ेंगी. उसके बाद क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट ने और भी एक चीज पर है, बिकॉज आपके पास अलग अलग केसेस, ऐसा नहीं होता कि आपके पास स्ट्रेट जैकेट केसेस है. यू ऑल्सो हैव केसेस जहां पर आपको वेरिएशंस दिखेंगे. हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस हो, जैसे अगर हम ये स्वीट बेकरी का ही एग्जांपल ले लें, तो आप मान लीजिए कि ये स्वीट बेकरी जो थी ये चल रही थी मार्केट में बहुत सालों से, इसने अपनी रेपुटेशन बना रही थी, और ये नई नई खुली है जिसने सेम पैकेजिंग वगैरह से वही सेम फैक्ट्स की मिसरिप्रेजेंटेशन करना चालू कर दिया. उसको बस 2-3 दिन ही हुए थे, और उससे 2-3 दिन बाद अपने आप को रजिस्टर करा लिया समहाउ. दो रजिस्ट्रेशन में बहुत चीजें होती हैं, है ना. ऑपोजिशन फाइलिंग होती है, न्यूज़पेपर में चीजें छपती हैं, देन आपका ऑब्जेक्शन फाइल होता है, एक्सेट्रा. बहुत चीजें होती हैं. मान लीजिए अगर ये भी चीजें बाईपास कर दीजिए और ये मान लो रजिस्टर हो गया, फिर भी इंपॉर्टेंस इसके जो प्रायर यूज था या फिर गुडविल और रेपुटेशन था जो स्वीट ट्रीट का था, वो कंसिडर करा जाएगा, ना कि ये जो बेकरी रजिस्टर हुई है सिर्फ 2-3 दिन में ही. ठीक है, मतलब आप ये बात को समझ गए. तो दिस इज ऑल्सो मोर वेटेज इज गिवन टू द प्रायर यूज और टू द गुडविल एंड टू द रेपुटेशन दैट अ कंपनी एस्टैब्लिश ओवर द इयर्स रादर देन द रजिस्ट्रेशन. तो मानस ने रजिस्टर भी करा लिया, 2-3 दिन बाद रजिस्टर हो भी गई, फिर भी आप इसको कर सकते हो नल एंड वाइड. दिस इज कंप्लीट अ वेरी क्लासिक केस ऑफ पासिंग ऑफ, जहां पर ये प्रिवेल करेगा बिकॉज इसने अपनी रेपुटेशन बनाई है, हालांकि रजिस्टर्ड नहीं है. उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड इन एक्शन बाय प्लेंटिफ एस सैयद मोहिदीन वर्सेस पी सुलोचना बाई, ये वाला केस था आपका. primacy is always to prior use over registration. Then Neon Laboratories Limited versus Medical Technologies Limited, इस केस में था कि अगर अगेन दिस इज अबाउट लिमिटेशन पीरियड, इसमें भी लिमिटेशन पीरियड है. केस फाइल नहीं करा. स्वीट ट्रीट का एग्जांपल ले लो. स्वीट ट्रीट के केस में स्वीट ट्रीट ने तो केस फाइल कर दिया था,
बेस बेकरी के अगेंस्ट रिन्यू थी। बट अब मान लो इसने फाइल नहीं करा होता, 6-7 साल निकल गए, फाइल नहीं करा, एक दिन आ रहा है फाइल करने के लिए, तो और उससे डैमेज हो रहा था, मीन टाइम उसको डैमेज भी हो रहा था इसमें, कि ये बेकरी स्टैब्लिश हुई है, उसको डैमेज भी हो रहा है, 10 साल से भुगत रहा था, एक दिन आगे केस फाइल करने, तो कोर्ट अगेन बोलेगी ना कि कोई तो टाइम पीरियड था, आपको तब आना था जब आपको डैमेज फेस हुआ, 10 साल बाद आप आ रहे हो, आपको खुद कदर नहीं है अगेन। दिस इज नियॉन लेबोरेटरीज वर्सेस मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। Again, a very lastly, this is a table for revision. Trademark infringement, this is regulated by statutory law. Then it requires a registered trademark. It focuses on similarity of marks, and it is easier to prove because you have a prima facie evidence, at least because you are a registered, you've registered your trademark. Common law remedy, it is not there anywhere in the statute. Registration is not required, it is unregistered, it is for unregistered trademarks. Focuses on misrepresentation and goodwill. So although the Trinity test that was established, you need to focus on that. You need to prove each and every element independently. मोर डिफिकल्ट टू प्रूव ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइम ऑफ से एविडेंस नहीं होता, रजिस्टर्ड होता ही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं साथ में, कि हाँ गुडविल है, रेपुटेशन है, कितने साल की है, तो अलग से इसमें काम लगता है। So this is up for this video. I hope you must have liked this particular video. If you've liked this particular video, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. If you have any doubts pertaining to any topic, or if you are somebody who is genuinely interested law में, if you are preparing for law entrance exam, if you somebody की वो लॉ स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप जनरली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो. You would get a lot of content which would be very very useful. Apart from that, this video could still be used for CLAT या OLETS में जो आपके कंटेम्प्रेरी या करंट लीगल नॉलेज पूछी जाती है, उसमें भी यूज करा जा सकता है. So my comment section of YouTube is always open for you guys. Apart from that, Instagram DMs or LinkedIn business page, Telegram doubt solving group, it's also open. All of these platforms are open. You can approach me on these platforms, and कोई भी डाउट्स है तो उस पर डाल देना. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.